ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ احمد برکاتی صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ بھائی میں عبداللہ بول رہا ہوں۔ عبداللہ کہاں سے؟ بھائی دلی سے۔ ہاں، جی شیخ، بولیے ایک کیا مطلب بات؟ تھوڑا سا مسئلہ تھا، وہی جاننا تھا آپ سے۔ جی پوچھیے۔ جی مطلب یہ دولہے کا جو مطلب یہ جو صحرا ہوتا ہے، جی تو کیا مطلب اس کی کیا مطلب وہ مطلب پہچان ہے، حقیقت ہے دین اسلام میں؟ اگر کوئی صحرا مطلب بھائی وہ نہ باندھے تو بہت سے عالم دین ہیں جو کہتے ہیں کہ مطلب بھائی وہ ہم نکاح نہیں پڑھوائیں گے، تو یہ مطلب کہاں تک جائز ہے یہ؟ دیکھیے، سہرا جو باندھتے ہیں نا، جی سہرا باندھتے اس لیے ہے کہ سب میں دولہا نمایاں دکھے، سمجھے؟ اچھا۔ سب میں دولہا منفرد دکھے۔ امامہ باندھتے ہیں اس لیے باندھتے ہیں کہ حقیقت آشنا ہو جائے، ورنہ سب اگر ایک ہی لباس میں بیٹھے ہو تو پتہ کیسے چلے گا اس میں کہ کون باراتی ہے اور کون دولہا ہے؟ سمجھ میں؟ اور اس لیے باندھتے ہیں کہ جو ہے دولہا نمایاں دکھے اور لوگ پہچان لے، آنے والے جو باہر سے مہمان آتے ہیں، رشتے دار آتے ہیں، خیش و اقارب آتے ہیں، وہ پہچان لے کہ بھائی فلاں شخص دولہا بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ سب کے امامہ باندھ دیتے ہیں۔ بہت جگہ جو ہے سہرا وغیرہ باندھا جاتا ہے، بہت جگہ سہرا وغیرہ نہیں باندھے جاتے۔ ہر ایک چیز کو اگر ہم جو ہے کتب اور حدیث سے تلاش کریں گے تو ہر ایک چیز کے دلیل کو ہم کھوج نہیں پائیں گے نا۔ اور علم جو ہے یہ سمندر ہے، اس میں غواصی کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جی نہیں، اصل میں شیخ صاحب مطلب یہ ہے نا، کیا بنا صحرا کی نکاح مطلب کیا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ نکاح بنا صحرا کی، ٹوپی پہ بھی نکاح ہوتی ہے۔ نہیں، کافی مطلب بریلوی عالم ہے جو مطلب کہتے ہیں کہ ہم نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے، وہ تو صحرا ہی نہیں باندھ کے آیا، تو ان کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ جو عالم ایسا کہہ رہے ہیں جی ان کو ایسا کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا شیخ، مطلب جیسے آپ نے کہا کہ مطلب یہ جو مطلب یہ صحرا ہوتا ہے دولہے کا اس لیے مطلب باندھا جاتا ہے کہ یہاں بارات جب جائے اور مہمانوں میں مطلب بھائی وہ دولہا الگ دکھے، تو آج کل کے صحرے جو آج کل آ رہے ہیں وہ مطلب ایسے صحرے آ رہے ہیں ایک دم مطلب بھائی وہ برقعے والے صحرے، اور اتنے بھاری بھاری، اور کھوپڑی ایک دم دولہے کی ٹیڑھی ہوئی جا رہی ہے، ایک دم روبوٹ بنا ہوا ہے بیچارہ، اور مطلب اور اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں صحرا باندھنا ہی پڑے گا، اور نکاح ہونے کے بعد جو بھائی وہ دولہے کی جو مطلب وہ خالہ ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ صحروں کو پھینکنا نہیں، اس کو لاؤ صحروں کو ڈال کے، اور پانی میں، دریا میں، ندی میں، تالاب میں، تو اس کا مطلب کیا مطلب اس کے پیچھے کوئی عقیدہ چھپا ہوا ہے کیا؟ اس میں دیکھیے اس کے پیچھے کوئی عقیدہ چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے ایک رسم بنا رکھا ہے۔ اس کے لیے یہی کہوں گا میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اگر شادی بیاہ میں دیکھیں گے تو یہ کہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اب دیکھیے شادی میں امام وغیرہ جو ہوتے ہیں اور قاضی وغیرہ، سب سے اہم کام ان کا ہی ہے، کیونکہ یہی جو ہے نکاح پڑھا کر کے رشتے کو جائز کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ حق تلفی ہوتا ہے، اور وہ فوٹو کھینچنے والا جو کیمرہ لے کر کے پورے شادی خانہ میں گھوم رہا ہے، ہاں ویڈیو بناتا ہے پورا، جی تصویر حرام ہے۔ جی صحیح کہا، یہ صفت اللہ کی ہے، صحیح بات ہے، یہ اللہ مصور ہے، صحیح بات، تصویر اللہ بناتا ہے، لیکن یہ تصویر کشی کر کے اگر وہ کہتا ہے کہ 10,000 روپے لوں گا تو کہتا ہے تو 12,000 لے، لیکن ذرا تصویر صحیح سے نکالنا، یہ تصویر حرام ہے۔ لیکن جب عالم نکاح پڑھا دے تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لاؤ 1,000-2,000 روپے اماموں کو دے دیا جائے، یہ ایسی قوم ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ جی جی، بیچارے آدمی آتے ہیں، قاضی صاحب آتے ہیں، اب مانیے بھائی وہ عصر میں آ گئے لیکن بارات لیٹ ہو گئی، بارات آ رہی ہے عشاء کے بعد، تو بیچارے ان کی مغرب بھی چھوٹ گئی، عشاء بھی لیٹ ہو گئی، اور بھائی وہ مطلب بھائی وہ نکاح پڑھوانے کے بعد ان کو 100 200 500 روپے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھانا کھا لیجیے گا، تو یہ تو غلط چیز ہے۔ کھانا کھا لیجیے گا تو بول دیتے ہیں، بہت جگہ نکاح ختم ہوا ان کی اسٹیج سے جب اٹھتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، لے کے تو بڑی شان و شوقت سے جاتے ہیں۔ تو کل جو ہے اچھا ٹھیک، مطلب جو یہ نکاح ہوتا ہے اس کے بعد جو مطلب یہ وہ دولہے کے بعد جو مطلب یہ قبول ہو جاتا ہے، تو مطلب جو وہ
مطلب وہ اسٹیج کے اوپر جہاں پہ وہ دولہے میاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ مطلب بھائی وہ کیا بولتے ہیں کھجور آتے ہیں چھوکے اور وہ چھوارے آتے ہیں شکر آتی ہے اس کو لوگ مطلب ایک دم بھائی وہ لوٹ لوٹ کے مطلب کھاتے ہیں. تو کیا مطلب یہ کیا طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ جو نکاح کے وقت جو چھہارا رکھا جاتا ہے جی یہ تو چھہارا جو ہے نکاح کے وقت رکھنا یہ تو سنت ہے نا بھائی. نہیں لوٹ کے کھانا کھانے کی بربادی کرنا اس مسئلے کو تو آپ خود جانتے ہیں نا. نہیں اگر کسی کو تقسیم کرنا ہے تقسیم کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے پیکٹ میں اس کو تقسیم کر نہیں. جو سنیے میری بات جو وہ لوٹ مار کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں خرافات کر رہے ہیں اس سے تو آپ خود واقف ہے نا. نہیں تو جو مطلب قاضی صاحب پڑھاتے ہیں نکاح ان کو تو کہنا چاہیے نا کہ یہ سب حرکت مطلب نہ کرو. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو آپ خود جانتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہو گئی ہے. جی فطرت میں اگر شریعت کو دخل دیں گے تو کہاں تک آپ دے سکتے ہیں. ایک آدمی کو اگر آپ مکمل شریعت میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو اس دور کے لحاظ سے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اچھا تو صحیح بات اس فتن دور کے حساب سے. اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو لیکن آج اتنا مشکل ہو گیا ہے. سنت ہے سب سے آسان سنت نکاح ہے. جی صحیح بات ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ مسواک سے بھی آسان سنت ہے نکاح. لیکن لوگوں میں صرف لوگ ہی نہیں بلکہ آپ نے بھی ہم نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کو اتنا بھاری کر دیا ہے کہ آج غریب کی لڑکیاں اس فتنے سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہے. چند لوگ ہیں جو ماشاء اللہ بچے ہوئے ہیں باقی بھائی سارے کے سارے لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. نہیں ماشاء اللہ شیخ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اچھا شیخ مطلب جو مطلب یہ نکاح سے پہلے دولہے کو مطلب بھائی کلمہ پڑھاتے ہیں کہ یہاں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ کلمہ پڑھانا کیا مطلب یہ کہاں تک جائز ہے؟ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو. جی بہت اسلام میں ابھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو مسلمان تو ہے لیکن اس میں اپنی پوری لائف میں کہیں کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں. اچھا اور اس کو کلمہ یاد ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ آج بھی دکھا دوں گا میں. نہیں یاد نہیں ہے تو اس کو سکھائیں گے نا لیکن مطلب یہ نکاح کے ٹائم خاص طور سے کلمہ پڑھوا کے نکاح کے ٹائم میں تجدید کلمہ پڑھایا جاتا ہے شاید اس لیے کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے. اچھا. اور انسان جب غلطی کا پتلا ہے تو پتہ نہیں اس سے کون سی ایسی جو ہے بات ہو گئی ہو یا کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس کے بارے میں اسے خبر نہ ہو اور اس کا جو ہے ایمان نکل چکا ہو. نہیں یہ تو مطلب باطنی بات ہے نا لیکن ظاہری طور پہ ایک مطلب عمل کو رائج کر دینا. اچھا تو ایک بات بتائیے شیخ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنا غلط ہے؟ نہیں کلمہ پڑھیے اٹھتے بیٹھتے صبح شام پڑھیے لیکن نکاح پڑھانے سے پہلے خاص طور سے اس کو مسلمان بنانا اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میں نے نکاح خانی میں اگر کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو بہتر ہے جو مجمع وہاں حاضر ہے وہ بھی حشر کے میدان میں گواہی دے گی کہ مولا اس نے تو میرے سامنے. نہیں اصل میں بات یہ نا دیکھیے نکاح کے ٹائم کبھی مطلب بھائی نہ تو اللہ کے نبی نے مطلب بھائی وہ ایسا کبھی پڑھا نہ کبھی کسی صحابہ نے ایسا پڑھا نہ کسی تابعی نے ایسا پڑھا. مطلب یہ تو ایک طریقے کی بدعت ہو گئی نا. کس نے آپ سے کہہ دیا مطلب اس کو جو ہے اچھی بدعت بول سکتے ہیں؟ نہیں اگر آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا یا صحابہ نے نہیں پڑھا یا نکاح کے وقت ان کا زیور ہی کلمہ تھا. ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہی کلمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. نہیں وہ اس کا انکار نہیں ہے. اس کی تو بہت مطلب بھائی الحمدللہ فضیلت آئی ہے کتاب و سنت میں. مطلب یہ نکاح کے وقت خاص طور سے کلمہ پڑھانا. نکاح کے وقت میں آپ کو کہا نا یہ تجدید کلمہ ہے اور تجدید کلمہ کے لیے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. انسان میں کیا کہا انسان غلطی کا پتلا ہے. ہو سکتا ہے اچانک اس سے بہت ساری اونچی نیچی باتیں ہو سکتی ہیں. تو صحابہ سے بھی مطلب وہ ہو سکتی تھی تابعی سے بھی ہو سکتی تھی تو انہوں نے صحابہ سے بھول چک کا لفظ آپ صحابہ کے لیے اس لیے نہیں لا سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے قرآن میں بے شمار آیتیں اتری ہے. ارے جب اللہ کے نبی سے بھول چک ہو گئی تو صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے نا.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब हुआ है, तो कहीं रज़ी अल्लाहु अन्हु नहीं, वो ईमान वाले हैं, लेकिन इंसानी फितरत के होते हुए हो सकता है उनसे भूल चूक हो गई हो, तो उनको भी पढ़ना चाहिए था दोबारा। इंसानी फितरत के लिहाज से हो सकता है, लेकिन मौलाना ये मतलब ये निकाह के वक्त जो खास तौर से कलमा पढ़ाते हैं, इसको हम अच्छी बिदअत हम मतलब वो उसको बोल सकते हैं कि नहीं? क्या अच्छी बिदअत इसको हम बोल सकते हैं ना कि हाँ निकाह के वक्त भाई कलमा पढ़ाना, तो इसको अच्छी बिदअत हम बोल सकते हैं? अरे यहाँ बिदअत का क्या सवाल है भाई, यहाँ आप जो क्योंकि है ये सुन्नत नहीं है ना, मतलब खास तौर से निकाह में कलमा पढ़ाना ये सुन्नत नहीं है, तो ये बिदअत हुई। अब ये मतलब भाई कोई बोल सकता है कि हाँ ये अच्छी बिदअत है, बिदअत हसना है? अरे कैसे कह सकते हैं कि आप ये बिदअत है? आप कैसे कह सकते हैं कि सहाबा ने जो है, देखिए बिदअत असल में उस काम को कहते हैं जिसकी दीन इस्लाम में असल और बुनियाद मौजूद ना हो, और निकाह के वक्त कलमे पढ़ने की कोई भी असल और बुनियाद मौजूद नहीं है। कलमा पढ़ाया है ऐसा कहीं मौजूद नहीं है। नहीं, निकाह के वक्त तो कलमा पढ़ाना ये तो मतलब किसी भी हदीस में नहीं आया, ना ही साहबा के आसार से मालूम चलता है। और जो है क्या कहते हैं निकाह की जो कंडीशन है, शराइत है, उनमें भी नहीं है ये। क्या निकाह के शराइत में नहीं है? हाँ, निकाह के जो शराइत है कि लड़का लड़की राजी हो, गवाह हो और मेहर हो, तो उसमें मतलब ये कलमे का नहीं है कि नहीं कलमा भी पढ़ना ही पढ़ना है। शेख आप लग रहा है कि शायद जो है आप सही फिक़ह का जो है आपने मुताला नहीं किया है। नहीं शेख, आप आलिम दीन है, इसीलिए तो आपसे मतलब हम कंफर्म कर रहे हैं इस्लाह की नियत से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना आपसे कि ये जो निकाह के वक्त जो कलमा पढ़ाया जाता है ये तजदीद कलमा है। और तजदीद कलमा मेरा खाली मतलब इतना सा कहना था कि जैसे हमारे माशाल्लाह बरेलवी आलिम है। नहीं आप इंसान देखिए, आप एक बात सुनिए मेरी। इंसान कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर जाता है कि जो है उसे यही नहीं मालूम होता कि जो है क्या कहते हैं कि उसने क्या कह दिया, और कभी कभी उसे तजदीद निकाह भी करना पड़ता है, समझ गए? नहीं अगर कोई नहीं, ये तो मतलब ये जो मुतरा हुआ है कि मतलब इंसान को हर महीने अपने भाई वो जो भाई ये निकाह है उसकी भाई तजदीद करनी चाहिए, तो इंसान हर महीने तो करता नहीं है। मैं नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन मसला बता दिया गया या नहीं बता दिया गया? हर महीने जी आप करते हैं हर महीने? मैं हर महीना तो नहीं करता हूँ। तो फिर और जो है असल बात ये ना, देखिए मोमिनों की एक सिफात है कि भाई वो बदगुमानी नहीं करता है। अब हम किसी के लिए बदगुमानी पाल लें कि हाँ जिसकी शादी हो सकता है पहले ये शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, नमाजें छोड़ता हो और कुफ्र इसने बोल दिया हो, तो लो दोबारा कलमा पढ़ाए, तो ये तो बदगुमानी उसके साथ हो गई ना। हो सकता है वो पहले से नेक परहेजगार हो। नेक परहेजगार हो तो और भी अच्छी बात है। कलमा से एतराज कहाँ है? कलमा हर जगह पढ़ सकते हैं, निकाह से पहले नहीं हर जगह पढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन निकाह कलमा पढ़ाने से पहले खास तौर से कलमा पढ़ाना ये तो एक नई रस्म लागू हो गई ना। अगर एहजाब कबूल करवाने से पहले अगर कलमा पढ़वा दिया गया तो इससे एतराज क्या है भाई? कितनी शादियों में लड़ाई हो जाती है इस वजह से कि अगर कोई भाई कोई अहले हदीस है, देवबंदी है, अगर उसकी शादी में अगर कोई बरेलवी काजी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कलमा पढ़ो, और सामने वाला उनसे पूछ रहे हैं मतलब ये कहाँ से साबित है, वो कह रहे हैं जब तक ये कलमा पढ़ेगा नहीं हम पढ़ाएंगे नहीं, तो इसमें फितना हो जाता है। मतलब इस कलमे को इतनी मतलब भाई वो निकाह से बस इम्पोर्टेंट क्यों? कलमा से इनकार है, कितना वही करेंगे जिससे कलमा से इनकार है। अच्छा मतलब नहीं, अल्लाह के नबी ने भाई वो निकाह के वक्त भाई कलमा नहीं पढ़ा तो क्या माज़अल्लाह उनको इनकार था कलमे से? सहाबा ने भाई उनका निकाह होता था, कैसे उन्होंने नबी ने कलमा नहीं पढ़ा? नबी ने कलमा पढ़ा होता निकाह के वक्त ना, तो ये उम्मत के ऊपर भाई ये सुन्नत होता। नबी खुद कलमा पढ़ो, नबी खुद कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते थे, पढ़िए आप भी ना। निकाह के वक्त खास तौर से पढ़ाना किसी को, उसके साथ बदगुमानी करना, ये कहाँ तक जायज़ है भाई? नहीं इनकार क्या है? हर चीज। अब शेख आप नाराज हो रहे हैं, आप बात समझना नहीं चाह रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप नाराज ना होइए। निकाह जायज नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कलमा से पहले निकाह जो है निकाह से पहले कलमा जायज नहीं है? बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ बिल्कुल ना जायज नहीं है मेरे भाई।
अरे यार जायज है या नाजायज है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्या चीज आप पूछ रहे हैं, आराम से बोलिए। निकाह से पहले कलमा जो पढ़ाया जाता है क्या ये जायज है या नाजायज है? अरे फिर आप बिदअत में जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ये जायज है या नाजायज है, फिर आप बिदअत में जा रहे हैं। बोल दिया तो भाई जायज की बात है या नाजायज है? कैसे नाजायज? अस्तगफिरुल्लाह भाई निकाह से पहले खास तौर से कलमा पढ़ाना और उसको मतलब एकदम मुज्जत बना लेना और जो कलमा ना पढ़े उसका निकाह ना पढ़ाना, ये एक नई बिदअत इजाद हो गई ना। तुम कलमा को नाजायज कर दिए यार। कलमा किसी भी मस्जिद में पढ़ी जाए, कहीं भी पढ़ा जाए, कलमा कलमा है। अरे कलमा से अच्छा, कलमे को लैट्रिन में आप पढ़ लेंगे? अरे लो यही देखे ना, जब अल्लाह कलमे को आप टॉयलेट में पढ़ लेंगे। आ गए अपनी हकीकत में आ गए ना, आ गए। आलिम साहब आप नाराज हो रहे हैं, नहीं आप नाराज हो रहे हैं। जैसे आपका सवाल है मैं भाई नहीं वैसे मैंने आपका जवाब दिया। का मतलब ये कलमा हमें आमतौर पर पढ़ना है, लेकिन ऐसी जगह नहीं पढ़ना है जहाँ से साबित ना हो। टॉयलेट में भाई कलमा पढ़ना साबित नहीं है, निकाह में कलमा पढ़ना साबित नहीं है। बड़ा अजीब हाल है यार तुम्हारा। कलमा को ले जाकर के लेटिंग में डाल दिए तू। अब तक आपने भी तो कलमा को निकाह में जाके डाल दिया, फिट कर दिया। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपकी बात को मिसाल से बता रहा हूँ। ऐसी मिसाल दी जाती है, ऐसी मिसाल दी जाती है, ये मिसाल है। आपने मेरे ऊपर बोतान बांध दिया कि मैंने कलमे को नाजायज बोला है। मैंने कलमे को नाजायज बोला है? बिल्कुल आपने कहा कि निकाह के वक्त कलमा नाजायज। हाँ तो निकाह के वक्त ना, तो उसको नाजायज बोल रहा हूँ ना। आप तो कह रहे हैं कलमे को नाजायज बोल दिया, माज़अल्लाह कलमे का इनकार कर दिया। आप तो झूठ बोल रहे हैं। निकाह के वक्त नाजायज है? अरे भाई आपने कहा कलमा निकाह के वक्त नाजायज है, ये कहा ना आप। अच्छा चलिए एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आलिम साहब नाराज ना होइए, गुस्सा टूट दीजिए, गुस्सा हराम है मेरे भाई। जुमले से हटिए मत, मुझे अरे एक मिनट नाराज ना होइए, मानिए मैं हूँ, ठीक है। अब मेरा निकाह होता है, अब मेरा निकाह होने के बाद अगर मैं बिना कलमा पढ़े अगर निकाह मैं अपना करवा लूँ तो मेरा निकाह हुआ कि नहीं हुआ? कलमा से अगर मेरा निकाह हुआ और मैंने अपना निकाह कबूल करने से पहले मैंने भाई कलमा नहीं पढ़ा तो मेरा निकाह हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बताइए। क्या बोले? अगर मेरा निकाह हो रहा है और मैंने अपने मैंने अपना निकाह कबूल करने से पहले कलमे को ना पढ़ा तो मेरा निकाह होगा कि नहीं होगा? हेलो, ये आसिफ बात कर रहा है। हेलो हाँ हेलो, आसिफ बात कर रहा है। हाँ आप क्या बोले कि निकाह से पहले अगर मैंने कलमा नहीं पढ़ा तो मेरा निकाह हुआ या नहीं हुआ? हाँ, अगर मेरा निकाह हो रहा है और मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्ट निकाह कबूल कर लिया, जो शराइत थी उसको पूरा कर लिया, तो क्या मेरा निकाह हुआ कि नहीं हुआ? तो शराइत में कलमा नहीं है, तो वही तो पूछ रहा हूँ, नहीं है शराइत में कलमा ना, यही इसीलिए तो बिदात कह रहा हूँ। किसने कहा आपसे कि कलमा? भाई आप साबित कर दीजिए कि भाई वो निकाह की शर्तों में कलमा पढ़ना फर्ज है, तो इंशाल्लाह हम आज से सारे लोगों से कह देंगे भैया कलमा पढ़ के निकाह करना। आप सबसे पहले ये कहेंगे शेख, इधर उधर अभी आपको भागना नहीं है, आपकी मेरी गुफ्तगू चल रही है, मैं इसको साबित करूंगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो आप ले रहे हैं, आपके के भाई पसीने छूट गए। मेरे क्यों पसीने छूटेंगे यार, ला हौल वला कुव्वत पढ़ो। तो आप भी तो नाराज हो रहे हैं, आप भी तो गर्म हो रहे हैं, आप का तो बीपी बढ़ गया है। मैंने एक आपको नॉर्मल बात पूछी। नॉर्मल नहीं, आप जो जुमला इस्तेमाल किए वो इस्तेमाल के लायक नहीं था, आपने कलमा को निकाह में नाजायज कर दिया। बिल्कुल मेरे भाई, आपको कलमा पढ़ना है, उठते बैठते जागते सोते सुबह शाम पढ़िए, लेकिन निकाह में खास तौर से कलमे को हुज्जत बना लेना, जो कलमा ना पढ़े उसका निकाह ना पढ़वाना, तो ये तो मेरे भाई एक तरीके की बिदात हो गई ना। कैसे बिदत हो गई? कलमे का इनकार करने वाला काफिर है, मालूम है आपको, और आपने कलमे का आपने भी इनकार कर दिया। टॉयलेट में आप क्यों नहीं पढ़ते हैं कलमा? नहीं किया टॉयलेट में आप क्यों नहीं पढ़ते हैं कलमा? कलमा ही तो है, उसको हर जगह पढ़िए जाके, फिर टॉयलेट में भी पढ़िए, बाथरूम में भी पढ़िए, गंदी जगह। अरे ला हौल वला कुव्वत, यकीनन तुम तो इसी तरीके से तो हम भी कह रहे हैं कि कलमा जब अल्लाह के नबी ने बैतुल खला में नहीं पढ़ा, ना ही निकाह में पढ़ा, तो इन दोनों जगह हम क्यों पढ़ेंगे? अरे निकाह में किसने कहा कि
जो है कलमा नहीं पढ़ा अरे गया। हमने पूरी नबी की सीरत पढ़ ली, सहाबा की जिंदगियां संभाल ली, सहाबा के आसार देख लिए। सहाबा सहाबियात का निकाह होता था, किसी सहाबा ने भी निकाह से पहले भाई कलमा दोबारा नहीं पढ़ा। एक दलील लाओ तुम। अरे दलील तो आपको देना है ना, दावा आपका है मेरे भाई, हम तो कह रहे हैं बिदात है, बिदात की दलील आपको कहाँ से देंगे? आप कर रहे हैं कि निकाह में जो है निकाह में कलमा हराम है, ये दावा आपका है। और मुझसे भाई हराम मैंने नहीं कहा अल्लाह के बंदे, मैंने बिदात कहा अल्लाह के भाई। नाजायज कहा, नाजायज। हाँ नाजायज की दलील मैं आपको दूं? दो नाजायज की दलील दो। अल्लाह के नबी की पूरी सीरत में, सहाबा की पूरी सीरत में, सहाबिया सहाबा के आसार में एक भी ऐसी किसी भी तारीख की किताब में, किसी भी हदीस की किताब में ये साबित नहीं है कि किसी ने भी निकाह से पहले दोबारा कलमा पढ़ा हो या सामने वालों को पढ़वाया हो। ये तो आप लोगों की बिदअत है, तो आप लोग के ऊपर आप लोग की जिम्मेदारी, आप इसको साबित करें। हम ऐसे कह दे कि सहाबा से भी साबित है, ताबईन से भी साबित है, तबे ताबईन से भी साबित है। हाँ तो बुरहान तुमकुम सादिकीन, तो आप अपना सबूत पेश कीजिए ना अगर आप सच्चे हैं तो। अच्छा हमारे लिए कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, तो तुम लाओ ना दलील दे तो दीदा मेरे भाई। तुम दलील क्यों नहीं दे रहे हो? अल्लाह के नबी का निकाह के वक्त कलमा ना पढ़ना, सहाबा का कलमा ना पढ़ना निकाह के वक्त, ताबई का कलमा ना पढ़ना निकाह के वक्त, ये सबूत है, दलील है कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ना ये साबित नहीं है। किसने कहा साबित नहीं? लाओ एक किताब। अरे मेरे भाई हद है अल्लाह के बंदे, आप मतलब एक हदीस पढ़ करके सुनाओ, जिस हदीस में ये एक हदीस पढ़ के सुनाओ या कुरान की एक आयत सुनाओ जिसमें ये लिखा हो कि जो है कलमा निकाह के वक्त नाजायज या हराम है। अरे तो जब निकाह के वक्त कोई पढ़ता ही नहीं था तो उसके ऊपर हदीस के अपने हाथ से बना दूं? अरे मेरे भाई आपको ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हदीस पेश करो ऐसी कि सहाबा ने फला साहबिया से निकाह किया तो उन्होंने भाई वो निकाह पढ़ने से पहले उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ा, ये तो जिम्मेदारी आपकी हुई ना। मैंने हदीस तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हद हो गई मेरे भाई। अबे यार उल्टा चोरी तुम करो और कोतवाल मैंने कहा चोरी की? शेख आप बेकार नाराज हो रहे हैं मेरे ऊपर बोतानबाजी कर रहे हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, तुम्हारी तो दो न जाने कितना तुम इतनी देर की गुफ्तगू में न जाने कितना कुफरिया जुमला कह दिया। अगर कोई ये कह दे एक बताइए कुफरिया जुमला। अभी बताता हूँ, अगर एक बताइए आप। सारी अभी बता देता हूँ। अल्लाह सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है या नहीं है? हाँ है। बोलिए। अगर कोई कह दे कि अल्लाह मेरे लेटिंग का मालिक है तो वो गुस्ताख है या नहीं है? क्या चीज? अगर कोई कह दे अल्लाह मेरे लेटिंग का मालिक है, मेरे टॉयलेट का मालिक है, तो वो गुस्ताख है या नहीं है? नहीं कोई गुस्ताख नहीं है, सारी कायनात में भाई टॉयलेट भी आ गया, बाथरूम भी आ गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खास टॉयलेट की निस्बत अल्लाह को दे देना गंदी जगह। क्यों मेरे भाई? ला हौल वला कुव्वत पढ़ो, ला हौल। अल्लाह ताला ने सुअर को भी भाई वो बनाया है, तो क्या सुअर अगर भाई वो हराम है तो क्या माज़अल्लाह जो मतलब ये सुअर है इसको अल्लाह ने भाई नहीं बनाया, किसी और ने बना दिया? अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारी। अरे आप मेरे भाई क्या अकल से पैदल हो क्या मेरे भाई? अबे तुम पैदल हो यार। अल्लाह ताला की मिसाल इतनी घटिया दे रहे हो अल्लाह के ताल्लुक से, अजमत को। अरे हर चीज का मालिक अल्लाह है। जुमला जायज है कि अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, लेकिन कोई अगर मखसूस उसको अगर कोई अपने टॉयलेट अपने लेटिंग के लिए कर दे तो ये इंसान ईमान से खारिज हो जाएगा। कुछ नहीं खारिज होगा, की सिफत है। अगर कोई टॉयलेट में बैठा पेशाब कर रहा है और अल्लाह की मर्जी है तो टॉयलेट की छत भाई वो गिर जाएगी, वो मर जाएगा, और अल्लाह की मर्जी नहीं है तो टॉयलेट की छत नहीं टूटेगी। तो अल्लाह ताला तो मालिक है हर चीज का। इसमें आपको मेरे भाई कौन सा गाड़ी लेकर के कहीं से कहीं गाड़ी लेकर के भाग रहा है? गुस्ताख बेअदब। यकीनन तुम लोग भाई अब बस जबानी पे आ रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल बेअदब और गुस्ताख हो तुम लोग। यकीनन मुझे तो मेरे भाई यकीन था ही, लेकिन अब तुमने और यकीन को मुस्तहकम कर दिया, क्योंकि भाई मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, अल्लाह का बंदा, अफू खान है मेरा नाम। अरे कोई अल्लाह का बंदा नहीं है, तू अल्लाह का बंदा है ही नहीं, तू तो शैतान का बंदा हो गया है। क्योंकि वली के दो तरीके हैं, मतलब शैतानी काम आप करो, में बिदते आप इजाद करो। आपने कहा कि दूसरों को चेहरा इसलिए पहनाते हैं कि वो बारात में जाए तो अलग दिखे, तो बारात में जाना क्या साबित है? कौन से साहबा की बारात निकली? कौन से अल्लाह के नबी की बारात गई? आप लोग खाली बिरयानी ठूसने के लिए, सालन रोटी ठूसने के लिए आप लोग बारात ले जाते हो, लड़की वालों के ऊपर बोझ डालते हो। 101 बाराती आएंगे, 251 बाराती आएंगे, 513 बाराती आएंगे, आप लोग लड़की वालों के ऊपर बोझ डालते हो।
दूल्हे को सर पे लेके पाँव तो सहरा पहना के उसको रोबोट बना के बैठा देते हो, उसके बाद कलमा पढ़ाते हो। अम्मी पे बोल नहीं डाला था, तेरा अब्बा से पूछा नहीं? हद हो गई मेरे भाई, मतलब जबरदस्ती अपने हाथ से दिन बना लेते हो, उसके बाद कहते हो कि साबित करो कि ये दिन नहीं है। हद हो गई अल्लाह के बंदे पे अमल किया था भाई, आपको आलिम किसने बना दिया? नकल करके पास हुए थे क्या मेरे भाई? तक अमल किया था भाई आप नकल करके पास हुए थे क्या? ढूंढ रहा है अपनी टॉयलेट को, ढूंढा या नहीं ढूंढा? अरे चाट लो मेरे टॉयलेट को आके, भाई मेरे टॉयलेट को आके चाट लो, थोड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है? अबे जमादार आदमी आके मेरे टॉयलेट को चाट ले, उसको साफ करके जो पैसा कहेगा दे दूंगा, ठीक है? अम्मी को लाने के लिए भिखारी आदमी, चोंगे खाने वाले, बर्फी खाने वाले, लड्डू खाने वाले दलील आदमी, दीन में नई नई चीजें इजाद करते हो, बिदात करते हो, और उसके बाद कहते हो साबित करो कि ये बिदात है। हद हो गई मेरे भाई। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो हमारे दीन में ऐसी चीज इजाद करे जो दीन इस्लाम में नहीं है तो वो मरदूद है। तो तुम तो मरदूद हो गए। मेरी बात सुन अब्दुल्ला। अच्छा भाई, अब्बा से पूछा? अरे आलिम साहब, तू अपने आलिम साहब पूछा कि नहीं था कि अब्बा? अरे ठंडा पानी पी लीजिए। नहीं, अकेले गए, अब्बा पूछा नहीं? ठंडा पानी पी लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, अपने मुंह पे पानी की छींटे मार लीजिए, ठीक है? तुम मारो भाई ठंडा पानी पी लीजिए, बीपी आपका हाई हो गया मुझे लग रहा है। खिलाफ काम किया तुम्हारा। अच्छा आदिल साहब, ये करके गया। एक चीज बताइए, निकाह में जब आप लोग कहते हैं, अम्मा को लाने, जब आप लोग भाई वो निकाह पढ़ाने जाते हैं और भाई वो दूल्हे से भाई 3 बार पूछते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, तो वो निकाह एक होता है या 3 निकाह होते हैं? आलिम साहब बताइए ना। अरे तुम मुशरिक आप लोग जब जाते हो किसी का निकाह पढ़ाने तो दूल्हे से 3 बार पूछते हो कबूल है कबूल है कबूल है, तो उसका निकाह एक होता है या भाई वो 3 निकाह हो जाते हैं? अबे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, इधर उधर एक निकाह होता है या 3 निकाह होते हैं? अगर एक मजलिस में एक आदमी ने 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है बोल दिया तो वो एक निकाह होगा या 3 निकाह होगा? वो तो एक निकाह होगा या 3 निकाह होगा, वो बाद में होगा। लेकिन बाद में होगा क्यों होगा मेरे भाई? अभी मानिए मैं हूँ, मैंने 3 बार कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है, तो मेरा एक निकाह होगा या भाई वो 3 निकाह होगा? वो तो तू अपने अब्बा से पूछ लेना कि इसका जवाब नहीं दोगे, जानते हो इसका जवाब दोगे तो तुम्हारी आगे से गेली पीछे से पीली हो जाएगी, तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। पीली हो जाएगी। एक मजलिस में 3 तलाक जब कोई देता है, कहता है तलाक तलाक तलाक, तो वो एक ही तलाक होती है। उसी तरीके से जब कोई आदमी कहता है कबूल है कबूल है कबूल है, तो उसका एक ही निकाह होता है, 3 निकाह नहीं होता है। अच्छा, जाहिल आदमी, तुम्हारी वजह से आज मीडिया में बदनामी हो रही है, मीडिया 3 तलाक को उठा रही है, हद हो गई है। जवाब ले। हाँ जवाब दो। तू कहता है ना कि 3 तलाक तेरे यहाँ 1 तलाक है, तो जब कोई तेरे मैं नहीं कहता हूँ, तुमने अपने अमाल से साबित कर दिया। जब तुम्हारे वहाँ किसी का निकाह होता है 3 बार उससे पूछते हो कबूल है कबूल है कबूल है, तो क्या उसका निकाह 1 होता है या 3 होता है? तो एक ही निकाह तो होता है। हाँ, एक निकाह होता है। तो जब कोई इंसान कह देता है तलाक 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 3 बार बोलता है एक साथ, तो एक ही तलाक तो होगा ना, तो वो 3 तलाक कैसे हो जाएगा पागल आदमी? अबे सुन मेरी बात। अरे सुनो नहीं, आप एक काम कीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, हमको लग रहा है बीपी आपका हाई हो गया है। फिर भाग रहा है। नाम मेरा भाई याद रखिएगा, अब्दू खान अलाहाबादी, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, ठीक है मेरे भाई? और तलाक से दूल्हे को सहरा पहनाना छोड़ दीजिए, ठीक है? ये दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, 7 फेरों में बना जन्मों का ये बंधन है ना। जाइए मेरे भाई, गाना गाइए किसी शादी में, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। अगर कोई सहरा पहन के ना आए तो उसका निकाह नहीं भाई पढ़वाएंगे, अगर कोई कलमा ना पढ़े तो उसका निकाह नहीं पढ़वाएंगे। अरे मेरे भाई अजीब दादागिरी है। अल्लाह के नबी ने कब सहरा पहना? साहबा ने सहरा कब पहना? साहबा ने भाई सहरा कब पहना? बिना सहरे बिना सहरे की निकाह हुआ सबका, और तुम लोग सर से लेके पाँव तक भाई दूल्हे को रोबोट बना के सहरा पहना के निकाह पढ़वाते हो। हद हो गई, हद हो गई। दीन इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपके ऐसे जाहिल आलिमों से उम्मत की भाई वो हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाहिल बिदती सलाम अलैका, तुम लोग